Hey everyone, welcome back to my channel and welcome back to your favorite series of British literature where we are seeing each and every age of British literature through exam ready pointers which are very beneficial for you before the exam. These are very to the point pointers which are going to give you a very good boost of revision and may let you know any new information which you may have missed during your preparation. You must be thinking, why am I not visible to you on the camera? Because I'm extremely unwell and so under the weather that I'm not able to come on camera or be present for you that way as I am always. I did not wanted to miss out on this series because the series is very important for you people because very less days are left for your exam. So I am going to give my best anyways. You just need to put emphasis and listen carefully to my words. You are going to get each and everything that you are supposed to. So let's get started. As you all know, we have already seen Anglo-Saxon age and Anglo-Norman age where we saw that three tribes came in and they settled in England and they brought different kind of changes, cultural, literary changes or language wise, and there are so many changes that they brought through to the native land of then medieval England. And in Anglo-Norman age we saw how the Norman conquest happened and William II took over the particular current day England, and then it brought so many kinds of changes. We saw that in Anglo-Norman age our England became a trilingual country where French became the language of aristocracy, Latin became the language of our educated clergy or monk or priest, and then Old English became the language of the common people and the masses. Now it's time for age of Chaucer. As you can see from the name, this particular age has been taken from a particular writer whose name is Geoffrey Chaucer. He is the most famous writer we all know being literature students. इनके नाम पे ये एज का नाम रखा गया है. दैट मीन्स कि इस पूरी एज पे हमारे चौसर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हम लोग को देखने को मिलता है. सो एज द नेम सजेस्ट, एज ऑफ चौसर रेफर्स टू द पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर एसोसिएटेड विद द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ जॉफरी चौसर. आपका ये जो पीरियड है 1300 टू 1400 एडी तक आपका जाता है. आप यहाँ पे इस एज को बोल सकते हैं एज एन एज ऑफ ट्रांजिशन. ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? आपका मिडीवियल एरा से मॉडर्न टाइम्स में आप देखेंगे कि चेंजेस हो रहे हैं. चाहे आप लैंग्वेज वाइज देखेंगे कि आपकी ओल्ड इंग्लिश किस तरीके से आपकी धीरे धीरे मॉडर्न इंग्लिश बनती जा रही है, या फिर कल्चरल वाइज, पॉलिटिकल वाइज, यू आर गोइंग टू सी सो मेनी चेंजेस इन द एज ऑफ चौसर. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जिस एरा में हैं उसको हम लोग 14th सेंचुरी बोलते हैं. ये जो पीरियड है ना बेटा, इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स की वजह से. बहुत बड़े 3 मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं. सबसे पहला है हमारा 100 Years वॉर, एंड दूसरा है हमारा ब्लैक डेथ, एंड तीसरा है हमारा पीजेंट्स रिवोल्ट. ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज 100 Years वॉर जो हुआ था हमारे इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में, इस वॉर की वजह से हमारी नेशनल आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाती है. जितने भी हमारे इंग्लैंड के पीपल है दे आर वो एक साथ एकजुट हो जाते हैं एंड दे डू नॉट वांट टू नाउ बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच पीपल और द फ्रेंच लैंग्वेज. इस बात को याद रखिएगा कि 100 Years वॉर जो आता है वो कंसोलिडेट कर देता है हमारे इंग्लैंड के पीपल के अंदर कि उनकी खुद की अपनी एक इंग्लिश भाषा होनी चाहिए एंड दे डू नॉट वांट टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फॉरेन लैंग्वेजेस, जिसका हम लोग को इफेक्ट नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद देखने को मिल गया था कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हमारे उस पर्टिकुलर लैंड में आ रही थी एंड बढ़ती जा रही थी. ब्लैक डेथ में भी कुछ ऐसा ही होता है बेटा. जैसे हम लोग ने कोरोना काल, हम लोग ने टाइम पे सब लोगों ने देखा कि एक ऐसी टाइप की महामारी आती है, एक ऐसी टाइप की बीमारी आती है जिसकी वजह से पूरी जनसंख्या आपकी खत्म हो जाती है. कुछ सिमिलर ऐसी चीज हुई थी. ब्लैक डेथ एक टाइप का फेमीन काइंड ऑफ थिंग था जिससे आपके रैट्स की वजह से कुछ इन्फेक्शन फैला था एंड आपकी इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन पूरी तरीके से वाइप हो गई थी. इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद लोगों के मन से प्रीस्ट को लेके एंड आपके चर्च को लेके जो है ना विश्वास उठ गया था, क्योंकि उन सारे लोगों ने अपने लोगों को मरते हुए देखा था एंड ये जो हमारे प्रीस्ट है, चर्च है, भगवान है, किसी ने इनकी मदद नहीं की एंड दे लॉस्ट देयर लव्ड वंस. तो इस पर्टिकुलर आपके ब्लैक डेथ के बाद आपकी जो मिडीवियल साइंस है ना बेटा, उसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं
लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान चला गया था कि आपके जो प्रीस्ट एंड चर्च है वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं आपकी जान बचाने में, बट इट इज द साइंस एंड द मेडिसिन दैट आर हेल्पिंग यू टू लिव लाइफ फर्दर। तो ब्लैक डेथ में एक ये बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था। थर्ड इवेंट दैट टुक ओवर वाज पीजेंट्स रिवोल्ट, जहां पे हम लोग को ये देखने को मिला कि किस तरीके से आपके जो पीजेंट फार्मर्स थे वो बहुत ही परेशान थे फ्रॉम द अरिस्टोक्रेटिक पीपल एंड द टैक्सेस लिवाइड ऑन देम। ठीक है, अरिस्टोक्रेटिक पीपल हमारे फार्मर्स के ऊपर बहुत बुरे बुरे टैक्सेस अप्लाई किया करते थे, ब्लैक डेथ आई, हंड्रेड्स वॉर आया, तो ये लोग भुखमरी में बिल्कुल चले गए थे। एंड इन्होंने क्या किया था, आपका जो लंदन टावर है उसको पूरा पकड़ लिया था एंड दे वांटेड, दे मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि अपने स्ट्राइक की थी, अपने हक के लिए इन्होंने कुछ चीजें मांगी थी, बट देन चेंजेस कुछ ज्यादा हुए नहीं। एज यू ऑल नो कि अरिस्टोक्रेटिक पीपल आर ऑलवेज रूलिंग एंड वो हम लोग को एक्सप्लॉइट करते ही रहते हैं। तो ये तीनों इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एज ऑफ चौसर में। आगे हम लोग बढ़ेंगे और जो चौसर, हम लोग की जो एज ऑफ चौसर है, जो नाम दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस एज को चौसर की एज मानी जाती है, ऐसे क्या इन्वेंशंस इन्होंने किए हैं एंड ऐसा क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं। चौसर की लाइफ आपको याद होनी चाहिए, 343 टू 1400 डायरेक्ट इनकी जो लाइफ स्पैन है वो आप लोग को लर्न होनी चाहिए। जॉफ्री चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये पॉइंट आप सभी को याद होना चाहिए। आई एम श्योर इसको बताने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं। आपके जो चौसर का पूरा लाइफ स्पैन है ना बेटा, उसमें आपके 3 राजा बदलते हैं। ठीक है, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ। तो ऐसा बहुत फेमस है कि आपका जो चौसर का लाइफ स्पैन है, ही लिव्ड इन अ लाइफ स्पैन वेयर 3 मोनार्की, ही सॉ 3 मोनार्की एंड 3 किंग्स चेंजिंग, एंड ऑल्सो दैट इनका जो रॉयल कोर्ट से बहुत अच्छा कनेक्शन था, इनको काफी डिप्लोमेटिक मिशन पे भी भेजा जाता था एंड इसी वजह से इनकी जो मृत्यु है वो भी पता नहीं लगाई जाती है कि किस वजह से इनकी मृत्यु हुई है। कुछ डिप्लोमेटिक मिशंस में ही इनको पकड़ लिया गया था या फिर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इनकी डेथ पे बनाई जाती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है, आप सबको याद होगा कि हम लोग ने स्टार्ट किया था ओल्ड इंग्लिश से, फिर हम लोग आते हैं मिडिल इंग्लिश में। आपके चौसर के भी टाइम पे मिडिल इंग्लिश चल रहा होता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आपके चौसर लेके चले जाएंगे हम लोग को मॉडर्न इंग्लिश के टूवर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज में भी काफी बड़ा ट्रांजिशन देखने वाले हैं। Chaucer's works played a crucial role in the transition from Old English to Middle English. His writings reflect the evolving language and linguistic richness of Middle English period. मैंने आपको एंग्लो नॉर्मन एज में बताया था कि किस तरीके से हमारी मिडिल इंग्लिश में चेंजेस आए थे लिंग्विस्टिक वाइज, लैंग्वेज वाइज। तो उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए ये कुछ चेंजेस अपने कुछ एड ऑन करेंगे जो आज की डेट में हमारी मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट बन जाएगा। अगर हम लोग जॉनरास की बात करें कि चौसर ने कौन से जॉनरास में अपने वर्क लिखे हैं, तो इन्होंने पोएट्री भी लिखी है, इन्होंने रोमांस भी लिखा है, इन्होंने एलिगरी भी लिखी है और इन्होंने फैब्ल्यू भी लिखा है। जल्दी से आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि आपका फैब्ल्यू क्या होता है। इसको जरूर से कमेंट करिएगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एटलीस्ट कमेंट डाउन एंड नो सर्टेन थिंग्स इन लिटरेचर। आप जब कमेंट करते हो या फिर किसी और बच्चे का कमेंट पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं जो अदरवाइज तो देखने में बहुत इजी लगती है ना, आप उसको ओवरलुक कर लेते हो, पर यूजीसी नेट आपसे उससे क्वेश्चन पूछता है। आप अगर देखते हो अपने चौसर के वर्क्स को तो आपको बेटा दिखाई देगी बहुत सारी वर्सिटैलिटी उनके वर्क में, डाइवर्सिटी उनके वर्क में आपको दिखाई देने वाली है। वो लिटरेरी ट्रेडिशंस को अपने बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं लेकिन अपने काम को बहुत ही डाइवर्सिफाइड तरीके से आपके सामने लेके आते हैं। अब ये देखने में तो लगता है कि हाँ हम लोग समझ गए, लेकिन आपसे यूजीसी नेट इससे बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जो मैं आपको एंड में दिखाने भी वाली हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोटली लव एंड रोमांस के ऊपर आपके चौसर लिखा करते थे। आपको अगेन बेटा कमेंट करके बताना है कि एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन एज में से कब ये ट्रांजिशन आया, कौन सी एज में आपका कोटली लव एंड कोटली रोमांस ज्यादा पसंद किया जाता था। जल्दी से आप लोग को कमेंट करना है। अगर आप मेरी सीरीज को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो तुरंत आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। चौसर की राइटिंग ऑफन एक्सप्लोर करती हैं थीम्स ऑफ कोटली लव, शिवलरी एंड रोमांस। क्योंकि जितने भी आपके राइटर्स होते हैं जो कोर्ट से जिनका कनेक्शन होता है ना बेटा, तो वो आपके कोटली
लव, शिवलरी एंड रोमांस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड इन वर्क्स में आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्टली थीम्स नहीं देखने को मिलती हैं, ये आपके क्लासिकल एंड मिडीवल ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हैं। सोशल रियलिज्म इन सटायर की बात करें तो आपके चौसर बहुत ही ब्यूटिफुली सोसाइटी को क्या कहते हैं कि ऑब्जर्व किया करते थे। एंड आपसे ये क्वेश्चन आपकी यूजीसी नेट ने डायरेक्टली पूछा है कि कौन सा ऐसा राइटर है जो आपका मिडिल एजेस का ऐसा राइटर है जिन्होंने सोसाइटी को बहुत ही रियलिस्टिकली ऑब्जर्व किया है। तो आपके जो चौसर हैं वो रियलिज्म दिखाने का काम करते हैं आपकी सोसाइटी में, जो जैसा है उसको वैसा दिखाते हैं, कुछ भी उसमें तोड़ मड़ोड़ नहीं करते हैं। सटायर भले करेंगे, उनके ऊपर व्यंग्य कसेंगे डिफरेंट कैरेक्टर्स को दिखा के, लेकिन रियलिटी दिखाते हैं ये हमारी सोसाइटी की। आपने अगर इनका कैंटरबरी टेल्स पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इन्होंने ब्यूटीफुली दिखाया है। चौसर इज नोन फॉर हिज कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। इस पॉइंट को याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। हिज वर्क्स इंक्लूड कैंटरबरी टेल्स जो सोशल रियलिज्म, सटायर एंड क्रिटिकल ह्यूमरस कमेंट्री को दिखाता है। वहां पे आपको पॉलिटिकल चीजें भी दिख जाएंगी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी दिख जाएंगे, एवरीथिंग दैट यू सी इन अ सोसाइटी, वो सारी चीजें आपको कैंटरबरी टेल्स में देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम लोग इटालियन लिटरेचर की बात करें, अभी तक तो हम लोग ने कौन कौन सी लैंग्वेज देखी बेटा? देखो फ्रेंच तो पक्का इनका इफेक्ट रहा होगा इनके ऊपर, क्योंकि एंग्लो नॉर्मन से आप जैसे ही इनकी एज में आते हो तो फ्रेंच उस वक्त प्रेवलेंट थी, फ्रेंच का बहुत बड़ा रोल है, तो फ्रेंच आपको देखने को मिलेगी। देन हम लोग को इससे ये भी पता लगता है कि इटालियन लिटरेचर का इनके ऊपर बहुत बड़ा कनेक्शन था। देन आपके जो चौसर हैं वो इंग्लिश लिखना प्रेफर करते थे, ठीक है। काफी सारे डायलेक्ट्स हैं आपके, ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश, वेस्ट मिडलैंड इंग्लिश। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि चौसर कौन से डायलेक्ट में लिखना पसंद करते थे। 3 लैंग्वेजेस का इफेक्ट है इनके वर्क में, तीनों में ही आपको वर्क्स मिल जाएंगे। इटालियन लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे दांते, पेट्रार्क एंड बोकाशियो के वर्क से, जो हमारे इटालियन राइटर्स हैं। इनके काफी सारे वर्क्स में आपको इनकी इटालियन इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है पोएटिक फॉर्म्स, जिससे आपकी यूजीसी नेट ने काफी बार रिपीट करते हुए क्वेश्चंस पूछे हैं, विच आई विल शो यू इन द एंड एज वेल। आपके जो चौसर हैं जितनी भी पोएट्री को लिखा करते हैं वो लिखते हैं कुछ डिफरेंट स्टाइल्स में, जैसे राइम्ड कपलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसी लाइन होती है जिसमें आपके 10 फुट होते हैं एंड उसमें आपके 5 पेयर्स बने होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है आपके आयम्बिक पेंटामीटर। टर्जा राइमा में ये लिखना पसंद करते हैं। आपके जो चौसर हैं वो माने जाते हैं कि इन्होंने इंग्लिश वर्स में इंट्रोड्यूस किया है आपके हीरोइक कपलेट को एंड आपके राइम रॉयल स्टैंजा को। इस पॉइंट को याद रख लेना, क्वेश्चंस भी आपको इससे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग अब चौसर के मेन वर्क्स के बारे में बात करें, जो हम लोग का मेजर लिटरेरी वर्क्स आ जाता है, तो ये सारे वर्क्स इनके इंपॉर्टेंट है बेटा। नॉट इवन सिंगल वर्क यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है जो आपको छोड़ के जाना है। रोमंट ऑफ द रोज, जिसको हम लोग रोमन डी ला रोज भी कहते हैं, द बुक ऑफ डचेस, द हाउस ऑफ फेम, एनेलिडा एंड आर्काइड, पार्लियामेंट ऑफ फाउल, ट्रोइलस एंड क्रूसेडा, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इनका मैग्नम ओपस है कैंटरबरी टेल्स। फॉर यू आई हैव ऑल्सो गिवन ओवर हियर द लिस्ट, जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है। नाउ कैंटरबरी टेल्स की एक एक डिटेल आपको कवर करनी है कि इसमें कितने पिलग्रिम्स थे, वो कौन से श्राइन पे जा रहे थे, उन सारे पिलग्रिम्स का आपको बेटा नेम एक बार जरूर से खोल के देख लेना है। एंड उनमें से मेजर नेम्स की जो पर्सनालिटी है, उनकी स्किन का कलर कैसा था, उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, उन्होंने कौन सी रोजरी उठाई थी, किसने लव कॉन्कर्स ऑल का आपका जो कोटेशन है वो दिया हुआ है, एवरीथिंग, हर चीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड इसमें जितनी भी यहाँ पे टेल्स लिखी हुई है, आप सबको पता है कि इसमें कितनी सारी टेल्स बताई गई हैं, इन ये जितनी टेल्स लिखी हुई हैं उनको आपको डिटेल में करके जाना है। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या प्रिपेयर करना है, क्या नहीं प्रिपेयर करना है। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द लिस्ट। अगर आपने प्रिपेयर किया है सो इट्स वेल एंड गुड, आप बस जाकर रिवाइज करोगे। अगर नहीं किया है तो मैंने जो बताया उसको आप देख लेंगे। एंड यहाँ पे जितने वर्क्स दिए हैं उनको बस ओवरऑल तरीके से ऊपर से आपको देखना है, ठीक है। सो विद दैट वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस दैट केम इन फ्रॉम एज ऑफ चौसर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स in Chaucer's Canterbury Tales
विद द मर्डर ऑफ अ चाइल्ड बाय ज्यूस। इसमें से कौन सी ऐसी चौसर की टेल है जो डील करती है एक ऐसी कहानी जिसमें एक चाइल्ड का मर्डर हो जाता है बाय द ज्यूस। तो अगर आपने ये कहानियां पढ़ी हैं जो मैंने आपको बताई कि इन टेल्स को जरूर से पढ़ो, तो यू वुड नो दैट क्लियरली कि प्रायरस की टेल के अंदर वो कहानी बताई गई है जहां पे एक बच्चे की मौत हो जाती है, मर्डर हो जाता है बाय द ज्यूस। तो आपको इस क्वेश्चन से ये भी समझ में आना चाहिए कि जितनी भी मैंने आपको टेल्स बताई हैं उनको आपको अच्छे से बेटा जाके कर लेना है। प्लीज डू नॉट लीव देम, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, बिकॉज उनसे आपके क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं डिटेल में। आगे बढ़ेंगे। One of the less noticed and acknowledged distinction of Canterbury Tales is that, ये क्वेश्चन आपका आया था 2018 में, एंड बच्चे बहुत परेशान हो गए थे इस क्वेश्चन को देखने के बाद, बिकॉज जो क्वेश्चन है ना थोड़ा इनडायरेक्ट है। आपसे पूछा गया है कि कैंटरबरी टेल्स के अंदर कौन सा एक लेस नोटिस्ड एंड एक्नॉलेज्ड फैक्ट रहा है। तो आप इस वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, अपना आंसर दीजिए, उसके बाद ही आप मेरा आंसर पढ़िएगा या फिर करेक्ट आंसर के टुवर्ड्स जाइएगा, तभी आपको ये चीज़ पता लगेगी कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या नहीं है। तो यहाँ पे जो लेस नोटिस्ड फैक्ट है कैंटरबरी टेल्स का वो ये है कि आपके इंग्लैंड के डिवीजन को दिखाने के बजाय आपका कैंटरबरी टेल्स डाइवर्सिटी दिखाता है। आपको कहीं पे भी डाइवर्सिटी, वैरायटी, चौसर का सोसाइटी को दिखाने का तरीका अगर पूछा जाए तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है और क्वेश्चन है वो बहुत ब्यूटीफुली इसको शो करता है। ठीक है, चलेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मीटर्स इज अ 5-foot line. It was introduced by Geoffrey Chaucer in the 14th century and has become the commonest meters in English poetry. तो आपको ये जो आंसर है यहाँ पे ऑलरेडी 5 बोला गया है, इससे आपको पता लग जाता है कि आपकी ये लाइन है पेंटामीटर, जो आपके जॉफरी चौसर ने इंट्रोड्यूस की थी और उसके बाद से हर इंग्लिश पोइट्री में इसको यूज किया जाने लगा। आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन कैंटरबरी टेल्स हु हैज अ रेड फेस फुल ऑफ सोर्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको सारे पिलग्रिम्स के नाम पता होने चाहिए, उनके अपीयरेंस की जो डिटेल है ना वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताओ, इस वीडियो को रोकने के बाद याद करो, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे मत जाना कि रेड फेस फुल ऑफ सोर्स वाला कौन सा इंसान था। तो आपका आंसर है द समनर। इससे हम लोग को ये पता लगता है कि हम लोग को इनके अपीयरेंस के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना है। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ एज ऑफ चौसर। आई होप आपको ईच एंड एवरी डिटेल बहुत ही ब्यूटीफुली समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन सिर्फ इतने नहीं आए हैं, एज ऑफ चौसर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। आप चाहो तो ब्रिटिश लिटरेचर की हमारी ये जो PYQ सीरीज है इसको अवेल करके सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को लगा सकते हो। यू आर लेफ्ट विद ओनली वेरी फ्यू डेज ऑफ योर एग्जाम। अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप दिन रात क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है। विद दैट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आप सभी को पता है कि फ्री लेक्चर्स मिलते हैं आपको मेरे यूट्यूब पे, एंड फ्री PYQs, पोल्स एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं मेरे टेलीग्राम पे। दोनों का ही लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू गो एंड चेक देम आउट। एंड अगर अभी तक आपने PYQs को अवेल नहीं किया है तो भाई आपको कर लेना चाहिए, बिकॉज जितने भी बच्चों ने इनको अवेल किया है उन्होंने इसके पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं, क्योंकि तैयारी उनकी हो जाती है 10 टाइम्स बेटर एक पर्टिकुलर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव and I will meet you up next in yet another video. Hopefully I will be able to come live in front of you. I will take care of myself and you too take care of yourself. एग्जाम से पहले आपको बहुत अच्छा रहना है ताकि आप एग्जाम देने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। So if you have any questions do comment down below, and वीडियो कैसा लगा please let me know, because आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि पता नहीं वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, बट देन टू आई वेंट ऑन फॉर इट कि नहीं, बच्चों को कंटेंट से मतलब होना चाहिए एंड ना कि मैम को देखने से। सो डू लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट दिस वीडियो एंड द ओवरऑल सीरीज। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, बाय एंड टेक केयर।